Hello friends, welcome to in my online class. Today we teach general science question related to physics, chemistry, biology. Question 1: Heat from the sun comes on the earth by conduction, convection, radiation, all the above. Our answer is radiations. The heat from the sun comes on the earth by the radiation process. Process is not required any media. Sun energy is reaches on earth without any media. So radiation, conduction, in conduction process, energy, heat transfer from one media to another media, one end to another end by the solid form, by the metals. And convection is a process, heat energy is transfer from one parts of liquid to another parts. There are the particles of the substance is movement from one end to another end, and they transfer energy from one parts to another parts. Convection is in the liquids, conduction is in the metals, and radiation process is the heat from the sun comes on the earth, radiation. So our answer is radiation. Next question अपना question 2. Rainbow is formed due to dispersion of light. Light का dispersion, rainbow formed. The water droplets is work function as a prism and dispersion of lights. Sunlight is mixture of seven color is VIBGYOR web cure से. Question 3. Density of water is maximum at 0 degree Celsius, 100 degree Celsius, 4 degree Celsius. Our answer is 4 degree Celsius. The density of water is highest at the 4 degree Celsius. So our answer is option 3, 4 degree Celsius. Approximately 3.98. Question 4 है a jet engine works on the principle of conservation of linear momentum. जेट इंजन्स लाइनर मोमेंट्स प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है, तो ऑप्शन ए आवर करेक्ट आंसर, लाइनियर मोमेंटम. क्वेश्चन 5. imperfections of eye astigmatism is corrected by using cylindrical lens. Our answer is answer to cylindrical lens. Imperfection of eye astigmatism is corrected by cylindrical lens. Option 2 is our answer. Question 6. An oil drop spreads over water because surface tension of oil is much smaller than that of water. Option 4 correct answer. सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव ऑफ ऑयल इज़ मच स्मॉलर, यानी कि ऑयल का जो पृष्ठ तनाव कम होता है देन दैट ऑफ वाटर, वाटर की तुलना में. ऑप्शन क्वेश्चन 7. इन ए लेज़र ऑल द एटम एमिट्स द लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी ड्यू टू सेम फ्रिक्वेंसी. आवर आंसर इज सेम फ्रिक्वेंसी, यानी समान आवृत्ति की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 8. अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय ए रेक्टिफायर. आवर आंसर इज रेक्टिफायर. एसी करंट को डीसी में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है. सो आवर आंसर इज रेक्टिफायर. ऑप्शन 4 रेक्टिफायर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 9. द फोर्स बाय विच ए बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स the center of the earth is called gravitational force. गुरुत्वाकर्षण बल. Due to gravitational force every object toward on earth force act toward on earth. Next question question 10. The kinetic energy of a body depends upon the formula of kinetic energy. E के बराबर हाफ mv स्क्वायर. both mass and velocity. There are mass and velocity, so
Kinetic energy depend on mass or energy. Next question, question 11. Boyle's law states that volume is directly proportional to temperature. Pressure is inversely proportional. Pressure is directly proportional to temperature. Pressure is inversely proportional to volume. P proportional to 1 upon V. P proportional to 1 upon V. This is Boyle's law. Question 12. As a train approaches us, the frequency or shallowness of its whistles increase. This phenomena is explained by Pascal law, Doppler effects, Charles Archimedes effect. Our answer is Doppler effect. Doppler effect is our answer. It is related to whistles and sounds. Doppler effect. Question 13. The term acceleration means acceleration A बराबर V minus U upon T. Option rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. Next question 14. Minimum distance required to hear an echo. Echo required 17 meters. Minimum distance required to hear an echo. Option 4 17 meter is correct answer. Question 15. Which among the following is the best conductor of electricity? Silver metal is best conductor of electricity. The resistivity of silver is very less. So question 16. Tidal waves on sea is mainly due to gravitational effect of moon on earth. Next question 17. What is the SI unit of power of lens? Power of lens की SI यूनिट क्या है? तो डायोप्टर. पावर ऑफ लेंस P बराबर 1 अपॉन F. पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट डायोप्टर है. इट इज डिनोटेड बाय D. क्वेश्चन 18 है. लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर. द मिनिमम एंड हाईएस्ट इज infinity. So our option is option 2. 25 centimeter is least distance of a human eye. Question 2 option 2 is our answer. 19. Next question. What is the boiling point of Kelvin scale? Kelvin scale पर जो boiling points कितना होता है, तो boiling points 100 डिग्री सेल्सियस में आपको 273 जोड़ना है. वाटर का, यहाँ पे वाटर का पूछा गया है, तो 373 केल्विन, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन. क्वेश्चन 20. पास्कल इज द ऐसा यूनिट. पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर की. प्रेशर P बराबर F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की यूनिट है न्यूटन्स, पावर की यूनिट है वाट और वर्क की यूनिट है जूल. नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट्स. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा, बीटा एंड गामा. 3 टाइप्स ऑफ द वेव्स दे आर रेडिएट, अल्फा, बीटा एंड गामा. ऑप्शन 3 इज अवर आंसर. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट्स अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 22. Which of the following has longest wavelength in electromagnetic spectrum? Radio waves. The radio waves has longest wavelength in electromagnetic spectrum. Option 2 is our correct answer. Next 23. Upward force of a floating body is called. upward direction में जो force लगता है that is called buoyancy force. Buoyancy force is act upward direction, opposite direction of the gravitational force. Gravitation is downward direction and upward direction is buoyancy force. आर्किमिडीज ने बताया था. 24. रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू. रमन इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है. नेक्स्ट 25. हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन व्हीकल वर्क्स ऑन.
पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक पास्कल लॉ पर ये कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। 26 द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन इज, आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है? तो व्रॉट आयरन, wrought iron is the purest। 27 question the element with lowest ionization potential, cesium, symbol of cesium is Cs, it have lowest ionization potential, cesium। next question 28 which element is present in all acids? Hydrogen is present in all acid। तो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 pH फैक्टर इज यूज्ड टू मेजर कलर ऑफ लिक्विड, एसिडिटी ऑफ लिक्विड, एसिडिटी ऑफ लिक्विड्स। आवर आंसर pH पैमाना होता है, सोरेनसन द्वारा इसकी खोज की थी। क्वेश्चन 30 विच इज कॉल्ड फिलोसफर वुल्स किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। आवर आंसर इज जिंक ऑक्साइड। द सिंबल ऑफ फॉर्मूला ऑफ जिंक ZnO। क्वेश्चन 31 विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर से मैग्नीशियम Mg इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। क्वेश्चन 32 वाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर द वाटर, फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। वाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर द वाटर एंड सोडियम मेटल इज केप्ट इन द केरोसिन। सोडियम इज मेटल बट फास्फोरस इज नॉन मेटल। क्वेश्चन 33 ड्राई आइस इज, व्हाट इज ड्राई आइस है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, CO2 in solid form। Question 34 which one of the following is a widely used solid lubricants? Graphite is used as a solid lubricants। शुष्क स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर constituents of the petrol? Octane is the major constituents of the petrols। our answer is octane, option 2 is our correct answer। question 36 what is the term egg mark used for? Grading various agriculture commodities is our answer, grading various agricultural commodities, option first। Question 37 the percentage of carbon in one molecule of carbon dioxide is approximately, percentage of carbon in one molecule of carbon dioxide 27.3 is our answer। 38 questions the commonly used washing soda is sodium carbonate, Na2CO3 is formula of sodium carbonate, commonly used washing soda sodium carbonate। next question 39 the sound waves in the audible range have frequency in the range from 20 Hz to 20,000 Hz। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि है वो ऑडिबल रेंज के अंदर आती है और 20 हर्ट्ज से नीचे आती है अवश्रव इंफ्रा। क्वेश्चन 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन 41 विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल? सबसे हल्का है हाइड्रोजन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन सबसे आवर्त सारणी के अंदर सबसे हल्का। नेक्स्ट है 42 एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज इज ए मिक्सचर ऑफ, अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का 1:3 का मिक्सचर क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया अम्लराज। यह सोने चांदी को भी गला सकता है,
इतनी क्षमता रखता है, यानी कंसनट्रेट HCl और HNO3 का 3:1 का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। इट इज़ वेरी पावरफुल मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स। क्वेश्चन 43, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण वाटर के अंदर कठोरता होती है, स्थायी कठोरता होती है। अगला 44 क्वेश्चंस अपना, एलिमेंट दैट शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स दैट आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, यानी कि इनको मेटलॉइड कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। 45 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग। गोल्ड, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल से 1 ग्राम गोल्ड इज डक्टाइल अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स। 1 ग्राम गोल्ड को लगभग 2 किलोमीटर तक ताना जा सकता है, इतनी डक्टिलिटी होती है गोल्ड की। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द टू मेटल्स आर मिक्सड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील्स। Chromium and iron is used as stainless steels. They are mixed in manufacturing of stainless steel. स्टील बनाने में हम क्रोमियम और आयरन का यूज़ करते हैं, तो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी हीट का तो अच्छा कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, दैट इज कॉल्ड माइका। ऑप्शन 4 इज आवर आंसर, माइका। माइका हीट का तो कंडक्टर होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी कि पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम है म्यूरिएटिक एसिड। नेक्स्ट है 49, विच एलिमेंट इज नोन एज क्विकसिल्वर। क्विकसिल्वर किसे कहते हैं, मर्क्यूरी इज कॉल्ड क्विकसिल्वर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एसिड प्रेजेंट इन विनेगार। विनेगार के अंदर एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH पाया जाता है, CH3COOH। क्वेश्चन 51, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर इज 21%, यानी 21% ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। और सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। 52 हमारा क्वेश्चन, लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस यानी कि हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला N2O, यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस है, हास्य गैस है। 53 हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो 18 होते हैं, 18 होते हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। ग्रुप्स 18 होते हैं और पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक आवर्स सारणी के अंदर, यानी कि पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, हैवीएस्ट नेचुरली ओक्यूरिंग एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि सबसे जो भारी वो है यूरेनियम से, नेचुरल्स जो अपना एलिमेंट्स है यूरेनियम। क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में अपन किसका यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम, NPK यानी कि पोटेशियम का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। क्वेश्चन 56, द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको एंटी एसिडिटी के रूप में अपन काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला इसका Mg(OH) ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 57 अपना, द मोस्ट अबेंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ऑर्गन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 आर्गन। इसका सिंबल है AR और 18 नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर है 18। क्वेश्चन 58 है, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल कंटेन। जो डिटर्जेंट्स सल्फोनेट्स होते हैं, दे आर सल्फोनेट्स। डिटर्जेंट्स जो होते हैं यानी कि अपमार्जक होते हैं, वो सल्फोनेट्स होते हैं। नेक्स्ट है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज़ कैरिड आउट बाय द एडिंग। रबर के वल्कनीकरण में किसका यूज़ करते हैं, तो सल्फर का यूज़ करते हैं, गंधक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 16,
केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। तो हमारा आंसर रह जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मेडिसिन, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन 2 हमारा हिप्पोक्रेटस करेक्ट आंसर है, इसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। क्वेश्चन 62, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर। लीवर यानी कि यकृत जो जिगर होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इंटरनल ऑर्गन है। क्वेश्चन 63, जीरोप्थेल्मिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन ए दैट इज कॉल्ड, इसको हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बी की कमी से बेरीबेरी और डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन 64, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन्स, यानी कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी? तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। 65 हमारा नेक्स्ट, ए पर्सन फील फैटिग्यू ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन मसल्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति थकान क्यों महसूस करता है? तो हमारी जो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड in our muscles due to we feel fatigue. Question 66, ultrafiltrations unit of kidney is called known as nephron। तो नेफ्रॉन क्या है? हमारी जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल यूनिट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है, मूत्र का फिल्ट्रेशन का काम करती है। 67 हमारा नेक्स्ट, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन है आयरन। क्वेश्चन 68, BCG वैक्सीनेशन बैसिलस कैलेमिटी गुएरिन इज इंजेक्टेड टू इम्यूनिटी फ्रॉम विच, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग यानी कि टीबी के रूप में BCG का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस दैट इज लंग्स रिलेटेड डिसीज। क्वेश्चन 69, विटामिन विच इज मोस्ट रेडियली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, विटामिन डी। विटामिन डी हमें सनलाइट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 70, लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन इज मिक्सचर ऑफ एल्गीज एंड फंगस। तो लाइकेन से हम क्या तैयार करते हैं? लिटमस पेपर तैयार करते हैं, नेचुरली प्राप्त करते हैं। 71, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। ऑप्शन फर्स्ट हाइपोथैलेमस इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72, ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी पेयर्स क्रोमोसोम। तो ह्यूमन सेल हैव 23 पेयर्स, यानी 23 × 2 = 46 क्रोमोसोम्स। हमारी जो सेल्स के अंदर 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 73, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज ह्यूमन। तो 120/80 mmHg, यानी कि 120 से 80 mmHg पैमाने पर होता है हमारा ब्लड प्रेशर, 120 से 80 mmHg। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 74 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन फंगस यानी पेनिसिलिन नोटेटम नामक फंगस से प्राप्त की थी, इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 75, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारे बोन्स और टीथ किसके बने होते हैं? ये कैल्शियम और फास्फोरस यानी कि ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के हमारी हड्डियाँ और दांत बनी होती है। 76 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ। यानी कि क्लोन क्या है? कॉलोनी ऑफ, हमारा जो क्लोन है सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्लोन के अंदर। क्वेश्चन 77, विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। तो बोरोन हमारा करेक्ट आंसर है। बोरोन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन, पानी और कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया बढ़ा देता है। क्वेश्चन 78, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ह्यूमन।
तो एमाइलेज एंजाइम हमारी जो लार के अंदर पाया जाता है, हमारी सलाइवा के अंदर पाया जाता है। 79 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोनोसाइट्स इन आवर बॉडी, यानी कि मोनोसाइट्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या यूज़ है। तो डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल, यानी कि जो मोनोसाइट जो होती है हमारी जो ब्लड के कंटेंट्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल हैज़, तो शिप, तो पहली जो क्लोन तैयार की गई थी डोली नामक भेड़ की तैयार की गई थी इयान वुलमिट द्वारा, तो डोली भेड़ पहली क्लोन है। क्वेश्चन 81, गोइटर इज कोज्ड बाय द, यानी कि जो गलगंड गोइटर रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन हमारा करेक्ट आंसर। गोइटर रोग, आयोडीन हमारे थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, बोमेन कैप्सूल इज प्रेजेंट इन, ये हमारी किडनी के अंदर बोमेन संपुट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, यानी विटामिन बी और सी वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो और ए डी ई के वसा के अंदर यानी कि फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा विटामिन बी जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी, यानी कि जो रक्त का अध्ययन हम हीमेटोलॉजी यानी कि हीमेटोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन 85, विच पार्ट ऑफ द सेल इज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है। क्वेश्चन 86 है, मिनरल विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, तो आयरन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 87, टाइफाइड फीवर इज कोज्ड बाय, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से होता है, यानी कि बैक्टीरियल रोग है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड जो रोग है ये हमारे आंत्र से रिलेटेड यानी इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से टाइफाइड यानी कि आंतरिक ज्वर हो जाता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सिनकोना प्लांट यील्ड क्यूनेन, यानी कि उसकी छाल से यानी कि बार्क से, सिनकोना की छाल से कुनेन नामक औषधि तैयार की जाती है, बार्क आएगा इसमें, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। ये जो दवाई है ये मलेरिया के उपचार में, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में करते हैं इसका यूज़। क्वेश्चन 89 है, विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी ए हार्मोन, तो किसको हार्मोन की तरह यूज़ करते हैं, तो विटामिन डी यूज्ड एज अ हार्मोन। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ कॉल्ड रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। क्वेश्चन 91 अपना, ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 92, विच ऑफ दिस इज नोन एज विंड पाइप, तो ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। क्वेश्चन 93, द अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी का अदर नेम है ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 ल्यूकोसाइट्स का अन्य नाम है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स भी इनको कहते हैं, वाइट ब्लड। क्वेश्चन 90, इंटरनल सेक्रेशन ऑफ विच एसिड हेल्प इन डाइजेशन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी आमाशय की ऑक्जेंटिक सेल्स द्वारा सेक्रेट किया जाता है, ये हमारे भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन 95, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की जो है फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। व्हाट इज़ जीनोम क्या है, जीनोम क्या होता है, हमारे गुणसूत्र का जो अगुणित समुच्चय दैट इज कॉल्ड यानी कि जीनोम कहलाता है, तो अगुणित यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड जीनोम।
नेक्स्ट है हमारा 97, विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड्स द्वारा ये सेक्रेट किया जाता है। क्वेश्चन 98 वाला हमारा है नेक्स्ट, विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। तो फ्रक्टोज इज सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। फ्रक्टोज लगभग सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा की श्रेणी के अंदर आती है। फ्रक्टोज जो सुक्रोज होता है, हमारी शर्करा शुगर्स जो होती है उसके अंदर सुक्रोज होता है। फ्रक्टोज हमारा करेक्ट आंसर। 99 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर रेड ब्लड कॉर्पल्स फॉर्म। हाँ, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी बोन मेरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन हमारा 100 है, विच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के उपचार में हम बायोप्सी करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट बायोप्सी हमारा करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।